ناظرین السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اوقافی اراضیات پر جبراً قبضوں کو قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا، عہدیداروں کو سخت انتباہ۔ گوٹلہ بیگم پیٹ عالمگیر مسجد کی اراضی پر جبراً قبضے کی شکایت پر ریاستی وزیر اظہر الدین کا دورہ۔ اگر کانگریس کو پنچایت انتخابات میں 65% ووٹ ملے ہیں تو انحراف کرنے والوں کے استعفے لے کر انتخابات کا سامنا کریں۔ کے ٹی آر کا وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو چیلنج۔ اکتالیس ماویسٹوں نے تلنگانہ کے ڈی جی پی کے آگے اختیار کی خود سپردگی، ہتھیار بھی کیے حوالے، 25,000 روپے فی کس رقم کی امداد۔ شالی بنڈا چوراہے کے پاس پولیس کی تلاشی مہم، امن متاثر کرنے والوں کو سخت کارروائی کا ڈی سی پی نے دیا انتباہ۔ حج پر جانے کا خواب دیکھنے والوں کے لیے الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز کی طرف سے ایک بہت ضروری اطلاع۔ اس سال سعودی منسٹری آف حج اور انڈین منسٹری آف مائنورٹی افیئرز نے رجسٹریشن کے نئے قوانین طے کیے ہیں۔ یاد رکھیں، حج بکنگ کے لیے اب وقت بہت کم بچا ہے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 15 جنوری 2026 ہے۔ ڈیڈ لائن کا انتظار نہ کریں، کیونکہ بعد میں شاید موقع نہ ملے اور سیٹس لمیٹڈ ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ اپنے حج کا سفر یقینی بنانے کے لیے آج ہی الیاسین ٹورز اینڈ ٹریول سے رابطہ کریں اور جلد از جلد بکنگ کروائیں۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر۔ سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود و وزیر پبلک انٹرپرائزز محمد اظہر الدین نے گوٹلہ بیگم پیٹ میں مسجد عالمگیر کاوری ہلز کی وقف اراضی پر غیر مجاز قبضے کو لے کر مقامی پولیس پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ریاستی وزیر نے
आलमगीर मस्जिद कमेटी की शिकायत का नोट लेते हुए जुमे को हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, तिमरीज के सदरनशीन फ़हीम कुरैशी, रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन, सदरनशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी के हमरा मस्जिद और उसके तहत वक्फ अराजी का मुआयना किया। रियासती वजीर ने पुलिस पर भी बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि फौरी इस सिलसिले में कार्रवाई की जाए। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा, हुकूमत वक्फ और मजहबी अराजियात पर जबरन कब्जों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी इसमें मुलव्विस पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासती वजीर ने यह भी कहा कि अगर कोई भी ओहदेदार इस सिलसिले में मुलव्विस पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अजहरुद्दीन ने मस्जिद कमेटी को तयक़ुन दिया कि हुकूमत उनके साथ है, किसी भी सूरत में गैर मजाज कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Don't teach me law. I also okay. This I am warning you today. I am telling you today. From today onwards, I want everybody in the police department to take care of this place, 90 acres. Otherwise, I will come and sit in the night. If you cannot do it, I will sit. मैं आके बैठता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. This is a waqf property. This is not anybody's land. समझे ना? आप लोग बहुत खामोश बैठते हैं तो सिर पे कैसे बैठते हैं? And the department people also. What are you doing? Why are you not agreeing to the gazette? Tell me please. It's a government gazette. Yes, sir, government. Did I write? Did you write? Or did they write? No, ना. किसने भी नहीं लिखा ना गजट. गजट का मतलब क्या है? You people, everybody start complaining. खाली complain करते रहते हैं एक के ऊपर. Why can't you do your duty properly? Otherwise, I will remove everybody. I will write to the same. I will write to the DGP also. If you cannot do the job, you please write. Give me in writing that हम नहीं कर सकते यहाँ पे. This is not the way it should function. From today onwards, I am warning you. I am telling you. If you do not do it, I will call you to my office. Every day I will call you and ask for a report. And these people are getting hit. These people are being, assaulted. What are you doing? Why he should come and why he should MLA should come and stand here? It is their job. It is nobody's job. It is not my job also. It is your job. You don't, when it's a status quo, it has a status quo for everybody. आप बताइए जाके कौन सा स्ट्रक्चर है? अच्छा नहीं, परसों सीओ साहब पुलिस को बोले सपोर्ट करो, बोले तो पुलिस सपोर्ट नहीं करे. Why you are not doing? First of all, last week people are very much complaining about you, and I am saying you, this is what you are doing is not correct. I am saying you, this is not at all correct from your part. एक मिनट में सीए गारू, you are allowing that the persons to encroach that. Are you saying their documents? On what basis you are allowing to them to encroach? You are denying our documents. And how allowing to them to encroach and all this thing? That means you are going against the government. Are you satisfied with their documents? You are working for the government or working for the people? Tell me, openly tell me. Or land grabbers? You are denying our documents. Now, are you satisfied with their documents? No, leave the bloody meeting. This is a very serious issue. Your meeting is not important for me today. This is a very serious issue. It's happening for so many years. What are we doing? Who is from Hyderabad? Every day is complaining. Every day people are getting assaulted. बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया है कि अगर रियासत के 65% अवाम उनके साथ हैं तो इनहराफ करने वाले 10 अरकान असम्बली के इस्तीफे तलब करते हुए फिर से इंतखाबी मैदान में उतरें। सिलसिला में बीआरएस पार्टी के दफ्तर में नौमुंतखबा पंचायत सरपंचों की तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए के.टी. रामाराव ने कहा, वजीर आला पंचायत इंतखाबात को लेकर बेबुनियाद दावे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी में पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव पार्टी कमेटियों को तश्कील देंगे। रियासती सतह से लेकर देही सतह पर ये कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। केटीआर ने यह भी कहा कि सिलसिला में 117 सरपंचों की नशिस्तों पर हुए इंतखाबात में बीआरएस ने 60 पर कामयाबी हासिल की। अगर वजीर आला में हिम्मत है तो 10 हल्के जात पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुकाबला करें। बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली हरीश राव ने पीजी मेडिकल तौलबा की फीस के लिए अपने घर को रहन रखकर 20 लाख रुपए अदा किए थे। बताया जाता है कि ममता नामी तालिबा के दाखिले के लिए सालाना 7.5 लाख रुपए की फीस कॉलेज इंतजामिया की तरफ से तलब की गई थी। ममता के अफराद खानदान बैंक से कर्ज लेने के लिए रुजू हुए तो बैंक की तरफ से ये कहा गया कि किसी भी तरह की जमानत बशमूल घर के रहन पर वो रकम फराहम कर सकते हैं। ममता के वालिद रामचंद्रन ने बीआरएस के लीडर हरीश राव से राब्ता किया। हरीश राव ने सिद्दीपेट का अपना मकान बैंक में रहन रखाते हुए ममता की फीस का इंतजाम किया। इसके अलावा
हॉस्टल की 1 लाख रुपए की फीस अदा की। ममता के अफराद खानदान ने हरीश राव से मुलाकात की और शुक्रिया अदा किया। हरीश राव ने ममता के अफराद खानदान के साथ नाश्ता किया। गवर्नमेंट के वेब बिरला लैया ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव को वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ तनकीदों से बाज आ जाने की ताकीद की है। मीडिया से बात करते हुए बिरला लैया ने कहा केटीआर में खुद से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। अगर उनमें हिम्मत है तो नलगुंडे से मुकाबला करें। सरपंच इंतखाबात में शर्मनाक शिकस्त के बावजूद भी केटीआर बड़े दावे कर रहे हैं। केटीआर को कारगुजार सदर के ओहदे से हटाकर यह जिम्मेदारी हरीश राव को सौंपी जानी चाहिए। रियासत में 12,702 सरपंच की नशिस्तों पर कांग्रेस ने 65% पर कामयाबी हासिल की। माजी में बीआरएस ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया था, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया। वजीर आला का मकसद देहातों को तरक्की देना है। इसी को लेकर कांग्रेस हुकूमत आगे बढ़ रही है। साबिक वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि 3 मरहलों में हुए पंचायत के इंतखाबात में बीआरएस कई अजला में पहले नंबर पर रही। मीडिया से बात करते हुए निरंजन रेड्डी ने दावा किया कि बाज़ अजला में हुक्मरान जमात को जहां 50% उम्मीदवार कामयाब हुए, वहीं बीआरएस के भी 50% उम्मीदवार कामयाब हुए। इन नतायज से रियासत में कांग्रेस के खिलाफ शदीद मुखालिफत महसूस हुई है। वजीर आला ने इंतखाबात के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया, लेकिन अवाम ने बीआरएस को कामयाबी दिलाई। उन्होंने कहा कि वजीर आला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी कामयाबी के दावे कर रहे हैं, लेकिन बीआरएस ने शानदार मुजाहरा किया। निरंजन रेड्डी ने कहा रैतु बंधु की रकम न मिलने पर आज किसान परेशान हैं। गरीबों को डबल बेडरूम मकानात नहीं मिलते, बेरोजगारों को मुलाजमतें नहीं दी जाती। हुकूमत को इसका जवाब देना चाहिए। 3 रियासतों के तकरीबन 41 माविस्टों ने जुमे को रियासती डीजीपी शिवधर रेड्डी के रूबरू खुदसुपुर्दगी अख्तियार की। खुदसुपुर्द होने वालों में कामारेड्डी से ताल्लुक रखने वाले स्टेट कमेटी के सेक्रेटरी ई रवि के अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की डिवीजन कमेटी के चेयरमैन भी शामिल थे। इन माविस्टों का ताल्लुक हिडमा के गुरोह से बताया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए डीजीपी ने कहा खुदसुपुर्द होने वालों में बास का ताल्लुक छत्तीसगढ़ से है। उन्होंने बताया कि माविस्टों की खुदसुपुर्दगी से रियासती हुकूमत की तरफ से माविस्टों की सरगर्मियों को काबू में करने के लिए की जा रही कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। डीजीपी ने बताया कि 24 हथियार भी माविस्टों की तरफ से हवाले किए गए। उन्होंने बताया कि जो हथियार हवाले किए गए उनमें लाइट मशीन गन, 3 AK-47 राइफलें, 4 303 राइफल्स और 1 सिंगल शॉट राइफल शामिल है। खुदसुपुर्द होने वाले माविस्टों में फीकस 25,000 रुपए की इब्तिदाई रकम भी तकसीम की गई। दूसरी तरफ रियासती डीजीपी शिवधर रेड्डी ने सिडनी के बोंडे साहिल पर हुए हमले के मुलजिम साजिद अकरम के हैदराबाद से ताल्लुक के बारे में वजाहत की कि ऑस्ट्रेलिया की कोई भी एजेंसी या पुलिस हमारे साथ राब्ते में नहीं है। मुल्क की मरकजी एजेंसियों की इत्तला पर साजिद अकरम के खिलाफ रियासती पुलिस ने तहकीकात की। डीजीपी ने बताया कि साजिद 1998 में पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था। इसके बाद वो साल 2000, 2004, 2009, 2012, 2016 और 2022 में हैदराबाद आया। खानदानी जायदाद के मामले में उसने हैदराबाद का दौरा किया था। जो इत्तलात हमें मिली थी हमने मरकजी एजेंसियों को पहुंचाई हैं। गवर्नमेंट यूनानी जनरल हॉस्पिटल ने अपनी 95 साला तारीख में हजारों नहीं लाखों मरीजों को शिफा दी है, लेकिन अब यह खुद हुकूमत की बेहिसी इंतजामी खलफशार का शिकार बन चुका है। इस हॉस्पिटल से मुत्तसिल यूनानी मेडिकल कॉलेज भी है, इसकी हालत भी ठीक नहीं है। 4TV की टीम ने हॉस्पिटल के बाहर कचरे के अनबार में दवाखाने के मुख्तलिफ दस्तावेजात, पैदाइश अमवात के सर्टिफिकेट्स, स्टाफ के रिकॉर्ड्स, तलबा व तालिबात के रिकॉर्ड्स, रकमी अदायगी के रिकॉर्ड्स, ड्यूटी रिकॉर्ड्स को देखकर हॉस्पिटल के जिम्मेदारों से सवाल किया तो उस पर कोई मुनासिब जवाब देने से कासिर रहे। हॉस्पिटल के बाहर कचरे में मुख्तलिफ मेडिकल व एडमिनिस्ट्रेटिव दस्तावेजात के अनबार देखे गए। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर इंतजामी खलफशार और मुबैना बेकायदियों का इंकशाफ हुआ। हॉस्पिटल के आरएमओ की हैसियत से डॉक्टर इसरार उन्निसा की तैनाती हुई। हॉस्पिटल के ज़राए ने बताया कि पहले से मौजूद इंचार्ज आरएमओ की मुबैना रुकावट और अदम ताउन के सबब
वो फ़राइज़ अंजाम देने से कासिर मालूम होती हैं। ये भी बताया गया कि उन्होंने रुख्सत हासिल कर ली है। हॉस्पिटल के अंदर एक ग्रुप का इस कदर दबदबा है कि इस ग्रुप को बख्शिश देने वालों के लिए सहूलतें दी जाती हैं। क़वायद पर चलने वाले स्टाफ के साथ गलत सलूक किया जाता है। सुपरिटेंडेंट व दीगर इंतजामिया कीमा पर एक वार्ड बॉय के अमले की ड्यूटियां डालने का अख्तियार दिया गया। इंचार्ज आरएमओ डॉक्टर कविता ने अपने सरकारी कमरे को मुकफ्फल कर दिया। हॉस्पिटल के ज़राए के मुताबिक इस इंचार्ज के तहत एक इंतजामी माफिया दवाखाने में सरगर्म है। उनकी एक 5 रुकनी टीम है जिसका करता धरता मुबैना तौर पर मनमोहन सिंह नाम का वार्ड बॉय बताया जाता है। दवाखाने की इस इंतजामी ज़बमुहाली पर सुपरिटेंडेंट वसंत राव से पूछा गया तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि कचरे में दस्तावेजात को फेंक दिया गया। ताहम उन्होंने बताया कि इसके असली रिपोर्ट्स दवाखाने में महफूज हैं। नई आरएमओ के बारे में उन्होंने वजाहत की कि वो शख्सी वजूहात के सबब रुखसत पर हैं। बात इस वजाहत पर ख़त्म नहीं होती। इस दवाखाने को इम्कानी तबाही से बचाने के लिए यूनानी तंजीमों, अवाम और हुकूमत को आगे आना चाहिए। जो दवाखाना कुछ कम एक सदी से देसी निज़ाम तिब के जरिए खिदमात अंजाम दे रहा है वो इस वक्त वेंटिलेटर पर हो चुका है। का ऐसा रहे तो वो कर देते, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऊपर रहे, नीचे नहीं रहते ना। वेस्टेज है वो। हाँ, वेस्टेज भी, वेस्टेज रहे तो वहाँ डालते, ऑफिशियल रिकॉर्ड से ऊपर रहते, फर्स्ट फ्लोर पे उसका स्टोर रूम है बाज़ाब्ता, वहाँ रहते हैं। आपके न्यू आरएमओ आए उन्होंने चार्ज ले लिए? हाँ, ले लिए सर, ज्वाइन होते ही चार्ज लिए जैसा। मेरे को ऐसा मालूम हुआ कि उनके साथ स्टाफ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा उनके साथ। अरे ऐसा कैसा रहता, नहीं, हर एक के साथ कोऑपरेट करना पड़ता। वो लोगों को आपके सुपरवाइजर कौन है? सुपरवाइजर साहब फिलहाल मनमोहन सिंह है। फिलहाल मतलब कोई है या नहीं है सर, लेकिन ड्यूटी खत्म हो जाती है उनका। सुबह में 8 बजे आते हो ना, 2 बजे खत्म हो जाती है। उनके खिलाफ आपके ग्रेड 4 के एम्प्लॉयज का ऐसा कंप्लेंट है। अच्छा, क्या उन्हें कुछ पैसे उसे लेके ड्यूटीज डाल रहा होता है? आपको नॉलेज में है या फिर नहीं? ऐसा तो हमारे को अब तक ऐसा कोई कंप्लेंट आपकी नॉलेज में नहीं है। चारमीनार में वाक़े महबूब सुबहानी चिल्ले पर अब गैर मौलाना तहदीदात लगा दी गई हैं। गुज़िश्ता कई दहों से नमाज जुमा के बाद यहाँ सलाम खैरुल अनाम पढ़ा जाता रहा, लेकिन मुत्तसिल गैर मजाज मंदिर इंतजामिया ने छिल्ले को जाने का रास्ता मजदूद कर दिया। यही नहीं, पुलिस ने छिल्ले की राहदारी को गाड़ियों की पार्किंग और लिबास बदलने के लिए इस्तेमाल करते हुए इस राहदारी को बंद कर दिया है। चार मीनार के जुनूब मशरिक़ी समत वाक़े महबूब सुबहानी का छिल्ला दर्जे रजिस्टर वक्फ है, जबकि इससे मुत्तसिल चबूतरे पर वाक़ मंदिर गैर मजाज है। मंदिर इंतज़ामिया वक्फे से मंदिर के दायरे को वसी करते हुए छिल्ले के वजूद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। इस छिल्ले के मुंतज़िम सैयद मेराज से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अरबाब मजाज को इस सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया गया। चार मीनार एक पेडेस्ट्रियन जोन है जहां गाड़ियों का दाखिला मना है, लेकिन पुलिस मंदिर आने वालों की गाड़ियों की इजाज़त दे रही है। छिल्ले की राहदारी में पुलिस वालों की गाड़ियों के साथ मंदिर आने वालों की गाड़ियां भी पार्क की जा रही हैं, जिसकी वजह से छिल्ले की राहदारी अमलन बंद हो रही है। हर जुमे में नमाज के बाद छिल्ले में सलाम गुजारने के अमल को रुकवाने मंदिर इंतज़ामिया ने हर जुमे को मंदिर में दर्शन की नई शुरुआत की है और छिल्ले के रास्ते को मजबूत करते हुए श्रद्धालुओं बिलखुसूस ख़वातीन श्रद्धालुओं की कतारें लगाई जा रही हैं। इसकी वजह से जुमे की नमाज के बाद सलाम गुजारने आने वाले अकीदतमंदों का छिल्ले तक पहुंचना नामुमकिन कर दिया गया। हर जुमा छिल्ले की ज़ियारत के लिए आने वाले अकीदतमंदों ने इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और महकमे अक़लियती बहबूद, वक्फ बोर्ड, वज़ीर अक़लियती बहबूद, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, पुलिस और दीगर मुतल्लिक़ा महकमे जात से शहर की गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी के लिए फौरी मदाखलत करने और हर जुमा छिल्ला मुबारक में सलाम गुजारने की रिवायत को जारी करने की अपील की है। हुकूमत ने बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करने वाले अक़लियती तलबा व तालिबात को सीज़न 2025 के लिए ओवरसीज़ स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम के जरिए बैरून मुल्क पोस्ट ग्रेजुएट व डॉक्टरेट कोर्स के लिए अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, फ्रांस और न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने वालों को 20 लाख रुपए और फ़िज़ा टिकट के साथ 60,000 रुपये दिए जाते हैं। ख्वाहिशमंद अपनी दरख्वास्तें 20 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्तों की हार्ड कापियाँ ज़िला माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिसर को 20 फरवरी 2026 तक हवाले करें।
एजुकेशन सीजन 2025 के तहत 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 के दौरान जिन तलबा और तलबात ने बैरून मुल्क यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लिया हो वो इस स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। कमिश्नर अखिलती बहबूद की जानिब से जारी करदा इस एलामिया से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात दफ्तर कमिश्नर अखिलती बहबूद, तिलक रोड, एबिट से रब्ता किया जा सकता है। ऑनलाइन दरख्वास्तें www.telanganaepass.egg.gov.in पर अपलोड की जाएं। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने सदर मजलिस की हिदायत पर GHMC और महकमे आबरसानी के ओहदेदारों के हमरा अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने टोली चौकी की मेन रोड, मस्जिद कौसर, सालेहा नगर, कंचा के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता किया। NP3 पाइपलाइन, VDCC और पीने के पानी की पाइपलाइन का मुआयना किया गया। दौरे में उनके हमरा अरकान बल्दिया मोहम्मद नसीरुद्दीन, वजुज़्ज़मा के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन मौजूद थे। रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर महकमे बरक़ी के डायरेक्टर प्रोजेक्ट मास्टर प्लान ITNHRD वी शिवाजी के हमरा एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में हल्का असम्बली राजेंद्र नगर शास्त्रीपुरम डिवीजन में 33 kV और 132 kV का नया सब स्टेशन कायम करने के मौजू पर बातचीत की गई। मस्कुरा सब स्टेशन कायम करने के बाद किंग्स कॉलोनी, एकता कॉलोनी, रिजवान कॉलोनी, नूर कॉलोनी, BK पुरम, शमा कॉलोनी, मोगल कॉलोनी के अलावा जायद 20 कॉलोनियों को भी बरक़ी सरबराही करने में सहूलत होगी। जबकि फिलहाल मिलारदे फल्ली से मुनासिब बरक़ी सरबराह न होने से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस मौके पर मिर्जा अहमद बेग ने सदर मजलिस का एक मकतूब भी CMD ऑफिस वाक़े मिंट कंपाउंड में डायरेक्टर शिवाजी के हवाले किया। तेलंगाना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 22 से 24 दिसंबर तक मुनक्किद होगा। ये इम्तिहान कंप्यूटर CBT मोड में होगा। हॉल टिकट्स डाउनलोड करने का अमल शुरू हो गया है। मजीद तफसीलात www.telanganaset.org से हासिल की जा सकती हैं। महकमे बरक़ी की जानिब से 20 दिसंबर को मलकपेट, चंचलगुड़ा, दबीरपुरा और मिधानी में बरक़ी सरबराही के फीडर्स के मेंटेनेंस के काम जारी रहेंगे। इसकी वजह से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बरक़ी सरबराही मौजूद रहेगी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कुमारवाड़ी, जमील किराना, फरतनगर, कम्युनिटी हॉल, मलकपेट के इलाके जात मुतासिर होंगे। चंचलगुड़े में मेहदी कॉर्नर, ग्रीनलैंड, गुड्डी बॉली के अलावा आसपास के इलाके जात में बरक़ी सरबराही सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मौजूद रहेगी। दबीरपुरे में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक दबीरपुरा ब्रिज, शाह कॉलोनी और मुमताज़ कॉलोनी में मज़कूर औक़ात में बरक़ी सरबराही नहीं होगी। मिधानी में दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक राज नरसिम्हा नगर कॉलोनी, औस नगर, इंदिरा नगर और उसके आसपास के इलाके जात में बरक़ी सरबराही में खलल पड़ेगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने लुम्बिनी पार्क और गोकुल चाट धमाकों के मुलजिमीन की तरफ से मुकदमे को दूसरी बेंच मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने NIA की खुसूसी अदालत की तरफ से मुलजिमीन को सुनाई गई मौत की सज़ा को चैलेंज करने की दरख्वास्त की समाअत करते हुए मुलजिमीन की ज़हनी कैफियत, सेहत का जायज़ा लेने के लिए 2 मिटिगेशन इन्वेस्टिगेटर्स मुकर्रर किए हैं। ये मिटिगेटर्स यानी कि तफ्तीशकार जेल में मुलजिमीन से मुलाकात करते हुए उनके नफसियाती हालात और सेहत का जायज़ा लेकर अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। मुलजिमीन ने उन्हें सज़ाए मौत पर नज़रसानी की दरख्वास्त की थी। हैदरा ने बंडलागुड़े के कंदीकल ग्राम पंचायत में सरकारी अराजी को नाजायज कब्जे से बाजियाब कराते हुए अराजी की हिसारबंदी कर दी है। बताया गया कि 7 एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जा किया गया था। इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। अदालत में भी इसकी समाअत जारी थी। ताहम जबरन कब्जे करने वाले ने अदालत की नोटिसों को नज़रअंदाज कर दिया था। इस अराजी की कीमत 400 करोड़ रुपए बताई गई है। हैदरा के मुताबिक गैर कानूनी फेंसिंग को हटा दिया गया है। यह अराजी एक झील के पास आती थी। अब हैदरा की तरफ से यहां हिसारबंदी भी की गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने रिन बाजार डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। रुकन असम्बली ने मस्जिद मदीना में नमाज जुमा अदा की। मकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को मसाइल की जल्द यकसुई पर जोर दिया। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन भी मौजूद थे।
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने अवाम को आरबीआई के हवाले से उडगाम वेब पोर्टल के जरिए साइबर मुजरिमीन की जानिब से धोखाधड़ी से खबरदार किया है। अपने एक बयान में कमिश्नर पुलिस ने कहा, बैंकों में मौजूद पैसा दिलाने का झांसा देकर इस वेब पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप इस तरह के किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोन नंबर और दूसरी तफसीलात साइबर मुजरिमीन तक पहुंच जाएंगी और बैंक के अकाउंट से आपके पैसे भी जा सकते हैं। कमिश्नर पुलिस ने अवाम को किसी भी तरह के लिंक्स को क्लिक न करने का मशवरा दिया और गैर ज़रूरी अपना OTP भी किसी से शेयर न करने का मशवरा दिया है। शालीबंडा चौराहे के पास DCP 100 जोन किरण खारे की क़यादत में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इलाके में नाकाबंदी करते हुए ये मुहिम चलाई गई। हालिया चंद दिनों में पुराने शहर में जराइम के बढ़ते वाक़यात के तनाजुर में अवाम में एतमाद बहाल करने के लिए ये मुहिम अंजाम दी गई। मीडिया से बात करते हुए किरण खारे ने बताया कि बिना नंबर प्लेट और नंबरों के साथ छेड़छाड़ करने के सिलसिले में 210 गाड़ियों को जब्त किया गया। पिछले 10 दिनों में ऐसी 2000 गाड़ियों को जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि आम शहरियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कानून की बालादस्ती के लिए ऐसी मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने रोड हीटर्स को और गैर समाजी अनासिर को अमन मुतासिर करने वाली सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। आज यहाँ पे साउथ जोन पुलिस की तरफ से राजेश मेडिकल हॉल चौक में यहाँ पे नाकाबंदी ऑपरेशन किया गया। इसके अंदर पुलिस की तरफ से टोटल 120 पुलिस पर्सनल यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए थे। इस नाकाबंदी ऑपरेशन में हमने इरेगुलर नंबर प्लेट के जो व्हीकल्स हैं या विदाउट नंबर प्लेट व्हीकल्स, ऐसे टोटल 110 व्हीकल्स को यहाँ पे हमने सीज किया। साथ में हमने जो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम रहता है और जो फिंगरप्रिंट्स रहते हैं वैसे भी हमने यहाँ पे यूज़ किया ताकि किसी तरह कोई एक्यूज या NW जिसके अप्रेंड है उसको हम कर सके। आज जो हमने नाकाबंदी यहाँ पे ऑपरेशन किया, ये ऑपरेशन सारे लोगों को एक किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि ये सारे आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आपके परिवारों की, आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए हम ये कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जो है क्रिमिनल्स लोग चेन स्नैचिंग कर रहे हैं, किसी तरह का रॉबरीज कर रहे हैं, साथ में कोई क्राइम्स वगैरह कर रहे हैं। तो ऐसे लोग विदाउट नंबर प्लेट व्हीकल्स कर रहे हैं ताकि कुछ लोग भी बेखौफ की तरह से यहाँ पे घूम भी रहे हैं। तो ऐसे लोगों में एक काबू करने के लिए हमने नाकाबंदी ऑपरेशन किया। लेकिन कोई भी राउडी शीटर या ट्रबल मॉन्गर या कोई भी न्यूसेंस करने वाले फेलो हैं, उन पर पुलिस की तरफ से हम स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। जो भी ऐसे व्हीकल में किसी भी तरह का इलीगल चीज़ें हुए लेके जा रहे हैं या किसी तरह का नशा भी लेके जा रहे होंगे, तो ऐसे लोगों पे हम कार्रवाई करें, इसके लिए हमने नाकाबंदी ऑपरेशन किया। अभी जैसे कि हमने जो किया, काफ़ी एक तरह का खौफ भी यहाँ पे लोगों में आ गया। स्पेसिफिकली जो लोग क्राइम करने वाले लोग हैं, जो राउडी शीटर है, उन लोगों का भी मूवमेंट काफ़ी कम हो गया। साथ में आप लोग भी देख रहे होंगे कि जो 20 दिन पहले जो विदाउट नंबर प्लेट लेके गाड़ी चला रहे थे, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन जो गाड़ी चला रहे थे, अब काफ़ी हद तक वो कम हो गया। काफ़ी सारे लोग जो है व्हीकल पे नंबर प्लेट लगा रहे हैं, प्रॉपरली कर रहे हैं। ओके। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद के इलाके एक मीनार मस्जिद के पास पेश आए हादसे में कार की टक्कर से पैदल राहरू जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब पुलिस को इसकी इत्तला मिलने पर मकाम वाक़या पहुंचकर जायजा लिया तो पुलिस को पता चला कि कार ड्राइवर लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा था। उसने पहले बरखी खंबे को टक्कर दी, उसके बाद कार की जद में एक नामालूम भिखारी आ गया। हादसे की खास बात यह थी कि कार ड्राइवर टक्कर देने के बाद मुकाम हादसे पर ठहर गया, जिसे हबीबनगर पुलिस स्टेशन ले जाकर तफ्तीश की गई। जख्मी शख्स को इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतज़ार न करें, क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफ़र यकीनी बनाने के लिए
आज ही अलियासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माबिन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। औकाफी अराजियात पर जबरन कब्जों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ओहदेदारों को सख्त इंतबाह। गोटला बेगमपेट आलमगीर मस्जिद की अराजी पर जबरन कब्जे की शिकायत पर रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन का दौरा। अगर कांग्रेस को पंचायत इंतखाबात में 65% वोट मिले हैं तो इन्हिराफ करने वालों के सिफे लेकर इंतखाबात का सामना करें। KTR का वजीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज। इकतालीस माविस्टों ने तेलंगाना के DGP के आगे अख्तियार की खुद सुपुर्दगी, हथियार भी किए हवाले। 25,000 रुपए फीकस रकमी इमदाद। शाली बंडा चौराहे के पास पुलिस की तलाशी मुहिम, अमन मुतासिर करने वालों को सख्त कार्रवाई का DCP ने दिया इंतबाह। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।